Hello students, today we are going to study chapter number 4 agriculture part 3 for class 10th in geography section. In this section we study about various types of agricultural movements like Bhudan, Gramodan, or what is the food security, and what are the different types of criteria have been applied by the farmers to increase their productivity, to increase their farm activities, etc. So let me discuss about the Bhudan and Gramodan. Bhudan and Gramodan movement, which was practiced by the Acharya Vinoba Bhave, who was the spiritual higher of the Mahatma Gandhi, and he also participated in the Satyagraha as one of the foremost Satyagrahis. Or Gandhiji's concept of Gram Swarajya, from which the Vinoba Bhave is very influenced by the Gandhiji's concept, and after the martyrdom of the Gandhiji, Vinoba Bhave undertook a Padyatra to spread Gandhiji's message covered almost the entire country. Or in his one lecture at Pachampalli in Andhra Pradesh, some poor landless farmers or villagers demanded some land for their economic well-being. Vinoba Bhave could not promise it to them immediately, but assured them to talk to the government of India regarding provision of land for them if they undertook cooperative farming. And Sri Ramachandra Reddy stood up and offered 80 acres of land to be distributed among 80 landless villagers. This act was known as the Bhudan. Literally, he traveled and introduced his ideas widely all over the India. Some Jamidar owners of many villages offered to distribute some villages among the landless. It was also known as Gramodan. बच्चों यहाँ पर ये बताया गया है कि जो भूदान और ग्रामोदान एक योजना चलाई गई थी, एक मूवमेंट था, एक आंदोलन चलाया गया था, भूदान आंदोलन, जो कि गांधी जी के शिष्य रहे थे और एक सत्याग्रही भी थे। गांधी जी के साथ ही उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन किया, जिनका नाम था आचार्य विनोबा भावे। ये गांधी जी के बहुत अच्छे शिष्य थे और गांधी जी के बाद इन्होंने इनका मैसेज स्प्रेड किया ऑल ओवर द इंडिया, स्पेशली पंचमपल्ली आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, जहाँ पर इन्होंने पैदल पदयात्रा की और उसके बाद में वहाँ पर पहुँच करके कुछ जमींदारों को इकट्ठा किया और उसमें से एक जमींदार थे श्री रामचंद्र रेड्डी। उन्होंने इनकी बात को माना और उन्होंने लगभग अपनी जो ज़मीन थी उसमें से 80 एकड़ ज़मीन जो है वो भूमिहीन किसानों को दी थी, और तब से ये जो आंदोलन कहलाया गया था भूदान। और उनको देख करके ही और लोगों ने भी उनसे इंस्पिरेशन लिया और कुछ और जमींदार भी जो थे उन्होंने लैंडलेस ओनर्स, जो लैंडलेस लेबर्स थे, उनको ज़मीन बांटी, और जिस तरीके से ये ग्रामोदान और भूदान के नाम से पूरा आंदोलन फेमस हुआ। अब आता है कि जो ये भूदान आंदोलन था, ग्रामोदान आंदोलन, ये आचार्य विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था। इसका दूसरा नाम भी था ब्लडलेस रेवोल्यूशन, मतलब एक बूंद भी रक्त की खर्च नहीं हुई, ये रक्तहीन क्रांति भी कहलाई है। और इसमें जो किसानों के ऊपर किसानों को डर होता था सीलिंग एक्ट का, कि उनको बहुत ज़्यादा जो कर्ज देना पड़ता था, एक उनको रेवेन्यू देना पड़ता था। तो इसमें रेवेन्यू नहीं देना पड़ा था, बल्कि इसमें जो है बहुत सारे ज़मींदारों ने उन पर तरस खा के उनको बहुत सारी ज़मीन जो है वो ऐसे दान कर दी ताकि वो लोग अपनी फार्मिंग कर सकें और अपने लिए कुछ अन्न उगा सकें। और इसी को रक्तहीन क्रांति बोला गया बाद में, और आचार्य विनोबा भावे का इसमें बहुत बड़ा रोल था। इसके बाद आता है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी इन एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। वी ऑल्सो केम टू नो दैट व्हाट आर द रोल्स ऑफ द FCI, ICAR, agricultural universities, veterinary services, animal breeding centers, horticulture development, research and development. These are the institutions that in the field of meteorology and weather forecast. These all are the improving our Indian agriculture, and apart from this, improving the rural infrastructure was also considered essential for the same. It also helpful in the growth of GDP, gross domestic production. So it also increase in the rate of national डेवलपमेंट। सो बच्चों यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि जो एग्रीकल्चर है उसमें राष्ट्र की जो आय बढ़ाने के क्षेत्र में, नेशनल इकोनॉमी को बढ़ाने के क्षेत्र में, हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के क्षेत्र में, और जो हमारा प्रोडक्टिविटी का आउटपुट बढ़े, ये इसके लिए जो है एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा योगदान है। अब ये समझ लीजिए कि जो 1951 में जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, उसके बाद से हमारे देश का GDP उस समय जो है 5 से 10% था, जो कि बढ़ करके 2010 और 2011 में लगभग
52% हो गया टोटल वर्क फोर्स का, और उसमें हमारा जो पूरी पॉपुलेशन थी वो इंगेज हो गई एग्रीकल्चर में। और एग्रीकल्चर का डिक्लाइन भी हुआ समय समय पर, लेकिन फिर से दोबारा से एग्रीकल्चर ने ग्रोथ की, और एग्रीकल्चर के ग्रोथ के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, उसको मॉडर्नाइज करने के लिए हमारे यहाँ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR को इस्टेब्लिश किया गया। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ कई बनाई गई, कई सारे वेटनरी सर्विसेज, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट किए गए, और साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स लाए गए फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी और वेदर फोरकास्ट में, जिससे कि हमारा इंडियन एग्रीकल्चर जो है डे बाय डे इम्प्रूव करता चला गया। यहाँ पर ये क्लियर है कि GDP की जो ग्रोथ रेट होती है वो हर साल बढ़ती जाती है, और उसमें हमारे एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा योगदान है, और उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। लेकिन हमारे इंडिया में फार्मर जो है उनके सामने आज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में अपना कंपटीशन कैसे कर सकते हैं, और हमारी जो गवर्नमेंट है वो फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे इन्वेस्टमेंट करे, और पर्टिकुलर जैसे उनकी सिंचाई को लेकर के पावर है, रूरल रोड्स है, मार्केट है, और उनके जो एग्रीकल्चर का क्षेत्र है उसमें मैकेनाइजेशन कैसे करें। तो इन सब क्षेत्रों में सरकार जो है बहुत तरीके से देखा जाए तो, जैसे फर्टिलाइज़र किसी को डालना है अपने खेत में और इरिगेशन करना है, इसके लिए सरकार जो है बहुत सारे सब्सिडी भी देती है किसानों को, जिससे कि उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ सके और उनका लेस इन्वेस्टमेंट हो सके, कम पैसों में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी उन्हें मिल सके। और अब आता है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी में ये होता है कि फूड एक हमारे यहाँ बेसिक नीड है, हर एक सिटीज़न जो हमारा कंट्री का है सबको फूड की ज़रूरत होती है, और फूड ऐसी चीज़ है जिससे कि मिनिमम न्यूट्रिशनल लेवल प्रोवाइड किया जा सके जनता को। और हमारे देश में जो फार्मर है या कह सकते हैं जो हर एक सिटीज़न है, उसके लिए फूड की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि एक नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम चलाती है, जिसमें कि 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बफर स्टॉक और एक होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो बफर स्टॉक का मतलब है कि जो भी स्टॉकिंग हम लोग करते हैं और जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टॉकिंग की जाती है फूड ग्रेन्स की, वो बफर स्टॉक है। और दूसरा होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब इसमें पहले फार्मर्स आएंगे, फिर फार्मर से जो उनका ग्रेन है वो गवर्नमेंट खरीदती है मिनिमम सपोर्टिव प्राइस पर होलसेलर्स के द्वारा, फिर होलसेलर से वो रिटेलर के पास जाता है और उसके बाद रिटेलर्स के पास जा कर के वो बिकता है। तो जो PDS प्रोग्राम है वो क्या है, मेनली एक प्रोग्राम है विच प्रोवाइड द फूड ग्रेन्स एंड अदर एसेंशियल कमोडिटीज एट सब्सिडाइज्ड प्राइसेस इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। PDS जो है वो एक ऐसा प्रोग्राम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एक ऐसा प्रोग्राम जो कि लोगों को, चाहे वो अर्बन एरिया में हो चाहे रूरल एरिया में हो, उनको कम पैसों पर जितने भी अनाज वगैरह हैं उनको उपलब्ध करवाता है, फूड ग्रेन्स को प्रोवाइड कराता है। तो गवर्नमेंट एक ऐसी फूड सिक्योरिटी पॉलिसी को अप्लाई करती है जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, कि सभी लोगों तक एक अफोर्डेबल प्राइस में फूड ग्रेन्स को पहुंचाना। और इसके लिए गवर्नमेंट जो है तरह तरह के प्रावधान भी करती है, लेकिन गरीब लोगों को ये इसका लाभ मिले, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे कुछ फिक्स रेट करती है, कुछ फिक्स सपोर्टिव प्राइस रखती है कि इससे ज़्यादा जो है वो वीट का प्रोक्योरमेंट करने के लिए और राइस का प्रोक्योरमेंट करने के लिए इससे ज़्यादा जो है किसानों को रेट ना दिए जाएं, जिससे कि एक तो स्टॉक भी मेंटेन रहे, दूसरा है किसानों के जेब में भी कुछ आमदनी जाए, और तीसरी बात है कि जो फूड है वो मार्केट में सीरियल्स के रूप में अवेलेबल हो, लेकिन वो बहुत महंगा ना हो। इसके लिए एक हमारे संस्था है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोक्योरिंग एंड स्टॉकिंग फूड ग्रेन्स, यानी कि जो भी अनाज आएगा उसकी खरीद फरोख्त और उसको फिर खाद्यान्न के रूप में सुरक्षित रखना, जबकि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो इस खाद्यान्न को सुरक्षित तरीके से पब्लिक तक पहुंचाना, ये काम PDS का है। और किसानों से डायरेक्टली जो है फूड को खरीदना और ख़रीदने के बाद में उसकी स्टॉकिंग करना, ये FCI का काम है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। FCI जो है फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करती है, ख़रीदती है किसानों से डायरेक्टली, और उसको जो FCI खरीदती है किसानों से इस फूड ग्रेन्स को, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि मिनिमम सपोर्टिव प्राइस रखती है। तो मिनिमम सपोर्टिव प्राइस में जो निम्नतम कहते हैं कि निम्नतम सहायक मूल्य रखा जाता है हर एक फर्टिलाइजर जो उसका उनके फूड ग्रेन्स का। तो इसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि समय समय पर किसानों को फर्टिलाइज़र्स के लिए, पावर के लिए, वाटर के लिए
सब्सिडी भी प्रोवाइड कराती है, जिससे किसान कम से कम पैसे की लागत लगा करके अच्छी से अच्छी फसल उगा सके और अपना अनाज बेच सके, उसको ठीक ठाक प्राइस मिल सके। लेकिन कई जगह पर यहाँ पर क्या है कि कई जगह पर जो इन तक वो ढंग से सुविधाएं नहीं पहुँच पाती किसानों तक। कई बार करप्शन की भी भेंट चढ़ जाता है सिस्टम, और इसकी वजह से क्या होता है कि किसानों को बहुत ज़्यादा खामियाजा इसका भुगतना पड़ता है। वाटर लॉगिंग हो जाती है खेतों में, सैलिनिटी डिक्रीज़ हो जाती है, सैलिनिटी नहीं रह जाती, सॉइल के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह सब डिप्लीट हो जाते हैं, और उनका जो एमएसपी होना चाहिए वो एक्चुअली उतना नहीं मिल पाता जितना कि उनको डिज़र्व करते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एफसीआई डिपार्टमेंट को रखा गया है, ताकि वो ये सब आपदाओं को ध्यान में रखते हुए किसान का जो मैक्सिमम सपोर्टिव प्राइस है उसको ढंग से रख सके और उस पर फूड ग्रेन को परचेज़ करे। फिर भी बहुत बार देखा गया है कि कई बार गवर्नमेंट के थ्रू इम्बैलेंस हो जाता है मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस रखने में, तो इससे क्या होता है कि किसानों को उसका बहुत नुकसान भुगतना पड़ता है। हमारे यहाँ 2 कैटेगरीज में कंज्यूमर्स को डिवाइड किया गया, एक बीपीएल और एक एपीएल, एबव पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा से जो ऊपर है, और बिलो पॉवर्टी लाइन जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं। गरीबी रेखा से जो नीचे के लोग हैं वो जनरली बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडीशन में होते हैं, और वो एक जो मिनिमम सपोर्टिव प्राइस होता है ग्रेन का उसको भी वहन नहीं कर सकते। और इसी के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन के लिए और उनकी सप्लाई के लिए एक पूरा क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट का एक सिस्टम बनाया गया है, जिसमें प्रॉपर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है ताकि वो लिंकेज क्रिएट कर सकें और वहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अप्लाई करते हुए सब तक फूड की अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर सकें। जो किसान है उसको उसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, और creation of necessary infrastructure like irrigation facilities, availability of electricity etc. may also track the private investment in agriculture। मतलब कि कुछ आवश्यक रूप से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है, जैसे इरिगेशन फैसिलिटीज़ देना, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की अवेलेबिलिटी, अगर ये सब सस्ता है तो प्राइवेटली भी लोग जो है एग्रीकल्चर में अपना पैसा लगाना पसंद करते हैं। और द फोकस ऑन इंक्रीजिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन विच शुड बी ऑन सस्टेनेबल बेसिस एंड ऑल्सो फ्री ट्रेड इन ग्रेन्स विल क्रिएट मैसिव एम्प्लॉयमेंट। अगर बीज सस्ता होगा और साथ में जो है उसकी लागत मूल्य भी कम आएगी, तो हर एक व्यक्ति जो है वो इस एग्रीकल्चर के सेक्टर में अपने आप को इन्वॉल्व करना शुरू करेगा और इंटरेस्ट भी लेगा, और जिससे कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और पॉवर्टी रिड्यूस होगी रूरल एरियाज़ में भी। और इसी को ध्यान में रखते हुए कई बार क्या होता है कि हमारी सरकार कई चीज़ों पर किसानों को जो है सब्सिडी भी प्रोवाइड कराती है, जैसे उनकी इरिगेशन फैसिलिटीज़ पर, एग्रीकल्चर में जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर, वाटर पर काफ़ी सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। और यहाँ पर ये भी देखा गया कि जो सीरियल्स और पल्सेस की क्रॉप्स होती हैं उसमें जो नेट सोन एरिया है वो भी बहुत बार देखा गया कि कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई इंडस्ट्रियल क्रॉप्स लगाई गई हैं जैसे वेजिटेबल ऑयल, सीड्स, फ्रूट्स कल्टीवेशन में, तो उससे क्या होता है कि वहाँ पर जो नेट सोन एरिया है वो घट जाता है दालों के लिए, अनाजों के लिए। तो उससे क्या होता है कि उससे ही फूड प्रोडक्शन कम होता है। तो लोग क्या करते हैं कि सब्जी वगैरह की ज़्यादा खेती कर लेते हैं, ऑयल सीड्स उगा लेते हैं, इंडस्ट्रियल क्रॉप्स जो कमर्शियल वैल्यू देती है वो उगाते हैं। तो उससे क्या होता है कि दूसरे किसान, या कह लो वही किसान जो पहले की सीरियल और पल्सेस उगाता था, वो अब सीरियल पल्सेस नहीं उगा रहा। सीरियल और पल्सेस फिर प्रोडक्शन में कम होंगी तो फिर उसका जो वैल्यू होगा मार्केट में वो ज़्यादा हो जाएगा। तो किसान को बार बार बढ़ावा देने के लिए कि वो ज़्यादातर मात्रा में सीरियल और पल्सेस उगाए, इसके लिए उसको हर चीज़ सब्सिडी पे भी प्रोवाइड कराई जाती है और उसको इनकरेज किया जाता है बार बार, ताकि वो जो है हमेशा मेन जो सीरियल्स हैं उनको उगाने पर ध्यान दें, जैसे कि हमारे देश में फूड सिक्योरिटी ख़राब ना हो सके। अब आता है कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। अच्छा, समस्या पर यह भी होता है कि जो बड़े किसान होते हैं, जैसे कि जिनके पास ट्यूबवेल्स होते हैं, जिनके पास वाटर क्राइसिस अगर मान लीजिए है और उनके पास ट्यूबवेल्स हैं,
तो गवर्नमेंट उनको लोन्स वगैरह भी प्रोवाइड कराती है ताकि वो ट्यूबवेल्स को फिर से इस्टेब्लिश कर सकें, HVY सीड्स खरीद सकें, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स का मेनली यूज़ कर सकें, और उनके जो प्राइजेज़ होते हैं फसलों के उनमें भी बारगेनिंग करके फिक्स प्राइस रखती है गवर्नमेंट, ताकि उनका मार्केट में जब तक वो अनाज पहुँचे तो उस पर हायर रेट उनको मिल सके और उन्हें बेनिफिट हो। एग्रीकल्चर का जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है वैश्वीकरण, उसका एग्रीकल्चर में बहुत इफेक्ट हुआ है। यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे पहले के ज़माने में, वो हमारे देश में आते थे, जबकि इंडिया में स्पाइसेस बहुत होते थे, साउथ इंडिया में, और यहाँ से वो मसाले ले जाया करते थे और उनको जो है विदेशों में बहुत हाई रेट में बेचते थे। इसके बाद कॉटन की ग्रोथ भी हुई। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हमारे यहाँ जैसे इस्टेब्लिश थी, और कॉटन बहुत ज़्यादा कच्चे रूप में रॉ मटेरियल के फॉर्म में यहाँ से ब्रिटिश लोग सस्ते रेट पर ख़रीदते थे और जा करके वहाँ इंग्लैंड में मैनचेस्टर वगैरह में उससे कपड़ा बना के बेचते थे। तो मैनचेस्टर और लिवरपूल में जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की गई थी, जिससे कि गुड्स की अवेलेबिलिटी, गुड क्वालिटी कॉटन जो है इंडिया से वो विदेशों में बहुत ज़्यादा अवेलेबल था। चंपारण मूवमेंट सभी लोग जानते हैं कि 1917 में बिहार में हुआ था, और वो इसीलिए किया गया था किसानों के द्वारा, क्योंकि उनसे ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। नील की खेती कराने से उनके जितने भी लैंड थे वो सब अनफर्टाइल हो जाया करते थे। और 1990 में जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो कई सारे फार्मर्स के सामने की चैलेंज था, तो उन्होंने जो ये सीरियल पल्सेस के उगाने के अलावा राइस कॉटन के अलावा उन्होंने रबर, टी, कॉफ़ी, जूट, स्पाइसेस इनको भी उगाया, और साथ साथ में नई नई फसलें भी उगानी शुरू की, और वो भी सब्सिडाइज्ड रेट पर, यानी कि कम रेट पर। जैसे कि आज हमारे देश में कई सारी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, और इसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी है उसको ध्यान में रखते हुए जीन रेवोल्यूशन भी लाया गया। जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम किया गया। जेनेटिक इंजीनियरिंग से भी बहुत बड़ा हमारे यहाँ एक कह सकते हैं कि एवोल्यूशन हुआ। और जीन रेवोल्यूशन के क्षेत्र में, जीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ कि नई नई प्रकार की फसलें आने लगी, नए नए प्रकार के बीज आने लग गए, और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा मिला है। कई प्रकार के नए नए फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स आए हैं। कंपोस्ट वगैरह जो है वो वर्मी कंपोस्ट खाद वगैरह तैयार की गई है। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया गया है, जिससे निगेटिव मैनर में कोई भी कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट पर कोई निगेटिव एस्पेक्ट भी नहीं आया, निगेटिव इफेक्ट नहीं आया, और एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन डे बाय डे बढ़ता चला गया। अब आता है कि a few economists think that Indian farmers have a bleak future if they continue growing food grains। मतलब बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये विचार करते हैं बार बार कि भारत के किसान का एक बहुत अच्छा फ्यूचर हो सकता है अगर वो अपनी जो पॉपुलेशन की राइज है उसको कम रखे और साथ में फसलों को उगाए, और टाइम से उगाए, और एक बड़े क्षेत्र में, यानी कि 1/2 हेक्टेयर पर पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति पर कम से कम आधा हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए, जिससे कि इंसान खेती कर सके उस पर और अच्छा से अच्छी फसल को उगा सके। और अभी हाल ही में क्या है, रिसेंटली मेडिसिनल हर्ब्स हैं, जैसे जेट्रोपा है और जोजोबा है, ये सब जो बायोडीजल क्रॉप्स हैं, कुछ कमर्शियल वैल्यू की फ्लावर्स हैं, मेडिसिनल हर्ब्स हैं, इनके उगाने पर बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कि हाई वैल्यू क्रॉप्स किसान को मिले और उससे उसकी इकोनॉमिसिटी बढ़े। तो बच्चों बस इस चैप्टर में अब इतना ही। टिल देन माय नेक्स्ट वीडियो, आई वांट टू से गुड बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोज़ टू।